Hello students, we are going for the chapter living and non-living things, and then we will discuss about getting to know plants. Firstly, we will discuss about living and non-living things. How can we say that this is non-living and I'm living? Because we have characterized these things on the basis of some characteristics, like this thing cannot move without my help, this thing will not move, I can move from here to there, I am respiring, this mouth cannot respire. So there are some characteristics like living things respire, non-living things do not. Living things respiration करती हैं through lungs, through gills, through many through skin diffusion के process से. So living things respire, living things move, living things move from one place to another place. Like plants also move. They show movement in some different way. Like we can say geotropism, phototropism, like if we talk about sunflower, अगर हम बात करें sunflower plant की, और आप if you are taking the sunflower along a window, आप जैसे ही सनफ्लावर पॉट लेंगे उसको विंडो के पास रखेंगे, यू विल ऑब्जर्व सनफ्लावर विल बेंड टुवर्ड्स द लाइट, इन द डायरेक्शन फ्रॉम वेयर द सनलाइट इज कमिंग. जहां से सनलाइट आ रही है वहां पर मूव कर जाएगा सनफ्लावर. सो दिस इज फोटोट्रोपिज्म, दिस बेंडिंग ऑफ लाइट, और दिस इज लाइट इज अ स्टिमुलस, सनलाइट इज कमिंग, sunlight is stimulus, something that is given. Suppose we are having a cup of tea and we are touching it, we will feel hot. That one is stimulus, that hot is stimulus. कि अगर हम किसी भी चीज को गर्म को टच कर रहे हैं, that hot will be the stimulus, वो हमारे लिए stimulus है. In the same way, sunlight is a stimulus, and this bending of sunflower towards the light is response. That means plants show movement in the form of response. जैसे ही कोई स्टिमुलस मिलेगा, ऐसे ही जो प्लांट्स हैं वो अपना रिस्पॉन्स शो करेंगे. अगर हम बात करें जियोट्रॉपिज्म की, जो रूट्स हैं, रूट्स ऑलवेज ग्रो टूवर्ड्स द सॉइल. रूट्स हमेशा डाउनवर्ड्स ग्रोथ करती हैं, एंड द शूट पार्ट ग्रोज upwards, it means towards light. So this is phototropism and this is geotropism. This growth in the direction of soil, in the direction of land, is geotropism. It means that one is geotropism. We have seen the Mimosa pudica, or touch me not plant, tree plant. If we touch that flower, if we touch that plant, the leaves of that, suppose these are the leaves, they fold themselves. जैसे ही हम टच मी नॉट प्लांट को टच करेंगे, वो अपने आप को क्या कर लेगा, अपने आप को फोल्ड कर लेगा. सो दिस इज ऑल्सो अ मूवमेंट, दिस इज ऑल्सो स्टिमुलस और रिस्पॉन्ड रिएक्शन. So that one is that is the way how the plants show their movement. That touch is known as thigmonistic. Suppose geotropism for length or soil, phototropism is for light, and one more thigmotropism is for touch. Suppose the example for thigmotropism is touch me not plant or Mimosa pudica. So this is the movement. Living things movement करते हैं, living things respire करते हैं. In the way we are respiring, we are breathing in, we are breathing out. This is respiration. So living things go for respiration. Living things reproduce. Like human beings reproduce, they produce a young one as they are having. They reproduce as themselves.
जैसे कि उनका वे खुद है ऐसे ही अपने वो यंग वंस प्रोड्यूस करते हैं. इन द सेम वे प्लांट्स आल्सो रिप्रोड्यूस. प्लांट्स भी जैसे वो खुद होते हैं ऐसे ही सीड्स प्रोड्यूस करते हैं और सीड से फिर न्यू प्लांट बनता है. सो दिस इज दे हैव अ लाइफ स्पेन. दे ग्रो, दे डाई, वी ग्रो, वी डाई. सो this is the lifespan. This is the way they are reproducing. They are living this earth. They are living on this earth. So this is the way how they take the lifespan, how they spend their life. So this is the they reproduce, they respire, they show movement, they make their own food. They need food to grow. So plants make their own food with the help of photosynthesis. Plants photosynthesis की हेल्प से अपना खाना बनाते हैं. In the same way we also need food to grow. हमें भी ग्रोथ करने के लिए फूड चाहिए. हमें अपने फंक्शंस परफॉर्म करने के लिए, हमें अपना वर्क परफॉर्म करने के लिए we need food. In the same way plants also need food. So plants and human beings are living. ये living है. So they also need food. They need food. They respire. They excrete. Whatever we eat is not all. Whatever we eat, जितना भी हम खाते हैं, जो भी हम खाते हैं वो सबका सब ऐसे नहीं है कि सबका सब हमारे लिए जरूरी हो, सबका सब न्यूट्रिशियस हो. there are some amount of food which we do not need, जिसकी हमें जरूरत नहीं होती है. उसमें कुछ ऐसा खाना होता है. तो so the removal of waste from the body is non excretion. So living things excrete. जैसे कि जो प्लांट्स होते हैं वो एक्सक्रीशन के फॉर्म में, जैसे कि अपने विल्टिंग कराते हैं. विल्टिंग ऑफ लीव्स, इट मीन्स जितना भी वेस्ट होगा वो लीफ में स्टोर अप कर देंगे. स्टोर करने के बाद उसको क्या कर देंगे, विल्टिंग हो जाएगी, लीफ फॉल ऑफ कर जाएगी. इसी तरीके से some kind of substance they produce, some type of gummy material they produce. So these are ways the plants remove the waste from the body. वो अपना waste remove करते हैं. In the same way we also excrete. We have a proper excretory system. We urine की फॉर्म में और fecal matter की फॉर्म में, feces की फॉर्म में we humans also produce waste and remove the waste from our body. तो जो लिविंग बींग्स होते हैं वो एक्सक्रीशन भी करते हैं. लिविंग बींग्स रेस्पिरेशन भी करते हैं, लिविंग बींग्स एक्सक्रीशन भी करते हैं, रिप्रोडक्शन भी करते हैं. सो these are the characteristics of living beings. Now we will discuss about plants. What are plants? We have many species of plants. Species means a group of living beings which live together, which have a same characteristic, which live together and can reproduce within themselves. So these are species. Species of plants means थोड़े से a group of people, a group of things, a group of organisms. एक group है organisms का. So जो एक साथ reproduce करेंगे, एक साथ reproduce कर सकते हैं. Same characteristics होती है सबकी, सब similar functions होते हैं, similar characteristics होते हैं. And if we talk, horse will produce horse हमेशा horse जैसा ही, अपने जैसा ही reproduce करेगा. Elephant will reproduce as elephant अपने जैसा ही एक elephant बनाएगा, reproduce करेगा. ऐसा तो नहीं है कि जो lion है वो कैट या फिर कुछ और जैसे टाइगर, इनको रिप्रोडक्शन करा सकती है, ऐसा कोई कुछ प्रोड्यूस कर सकती है. नो. सो अ ग्रुप दे आर रिप्रोडक्टिवली एक्टिव इन द सेम स्पीशीज. सिर्फ एक ही स्पीशीज में रिप्रोडक्टिवली एक्टिव होते हैं. ऐसा नहीं है कि कुछ किसी और को भी रिप्रोडक्शन करा सकते हैं. सो दिस इज स्पीशीज. So there are a lot of species, more than 250,000 species of plants in the world, and we have divided these into two parts. We have divided the plants into two parts. One is flowering plants, another is non-flowering plants. Flowering plants means they produce flowers like sunflower, rose, lotus. ये सब क्या करते हैं? They produce flowers. हमने इनके सबके flowers देखें. There are some plants which do not produce flowers like neem. We have never seen a flower of neem. हमने कभी नीम का flower नहीं देखा. So these are non-flowering plants. ये non-flowering plants होते हैं, तो हमने plants को two parts में divide किया है. One is flowering and other is non-flowering plants. So if we talk about
Non-flowering plants, they will not produce flowers, and flowering plants, they will produce flowers. Like neem, like mustard, they do not produce flowers, so these are non-flowering plants. अगर हम बात करें flowering plants की, rose, lotus, all these are flowering plants. Next, we have divided the plants into another 4 groups according to their characteristics and their functions. उनके functions और characteristics के बेस पर, उनके shape और size को देखकर हमने उनको 4 parts में divide किया, जो कि हम बचपन से पढ़ते आ रहे हैं. 1 herb, shrub, climber, creeper, tree. 1 is herb, shrub, tree, climbers, creepers. Herb, they're very small. They have a very thin and weak stem. इनका बहुत छोटा stem होता है, बहुत weak stem होता है. Their stem do not have the capacity to withstand. इनके stem की इतनी ज़्यादा capacity नहीं होती कि वो सीधा खड़े हो सके. So they are small in size. इसलिए वो छोटे होते हैं size में. इनका जो stem होता है वो भी green color का होता है. Next we will move to the shrub. Shrub have a little brown stem. They have a stem more strong than a herb. herb से ज़्यादा strong होता है इनका stem. ये भी small होते हैं size में. They are small in size. If we talk about trees, trees are very strong enough to withstand. Trees का stem बहुत strong होता है. They are very large in size. बहुत बड़े बड़े होते हैं. They have a very long lifespan also. If we talk about climbers and creepers, their stem are more weak than herbs. herbs से भी ज़्यादा weak होते हैं इनका stem. That's why they grow along the length. वो surface, length की surface के along grow करती हैं. surface पर ही grow करती है, upward नहीं जा सकती हैं. That's why climbers need support. climbers को support की need होती है, इसलिए वो support की help से क्या कर जाती है, ऊपर climb कर जाती है. With the help of any support, any kind of support. It can be a living support, or it can be another plant or another tree support. तो ये support लेकर ऊपर चढ़ जाती है, but creepers grow along the surface of the earth. So these are the divisions. Now we will discuss about trees or plants. We have divided the plant into 2 parts. One is root part and another is shoot part. The part which is below the surface of earth, which is below the surface of land, that is root part, and above the surface of earth is shoot part. Suppose this is a plant. This is shoot part. This is root part. Firstly, we will discuss about root part and then we will discuss about shoot part. Root part में सबसे पहले root, the underground part of the plant. जितना जो भी underground part होता है plant का, that is root. Functions क्या होते हैं root के? To absorb water and mineral from the soil. soil में जितना भी water होता है, जितना भी water होता है, जितने भी nutrients होते हैं, जितने भी minerals होते हैं, उन सबको root hairs की help से क्या करती है? root hairs की help से वो उसको absorb करती है और फिर stem के through they have vessels, they have transportation system. उनका transportation system होता है जिसकी वजह से वो क्या करती है? They have xylem and phloem. क्योंकि water यहाँ पर absorb हो रहा है, लेकिन food के process में, photosynthesis के process में water की need leaves को है, तो वो water यहाँ से transport होगा to the leaves, and this transport is through xylem. Vessels होती है, tube-like structures होती है plants के पूरे plant में vessels होती है, it means tube-like structures होती है जिनको हम xylem बोलते हैं. And for the transportation of food we have phloem. Food leaf में produce होता है, but roots को भी food की जरूरत होती है. For that they have phloem. जितना भी food leaf में बनेगा वो सारे का सारा transport होगा कहाँ पर? To the phloem, to the roots through phloem की help से. So roots क्या करती है? Absorb water and mineral. They provide support provide कराती है वो.
दे होल्ड द प्लांट, दे अपहोल्ड द प्लांट, अपहोल्ड करेंगे प्लांट को, क्योंकि रूट बिल्कुल जितना डीप रूट होंगी, जितना ज्यादा एक सॉइल में डीप होंगी, उतना ज्यादा क्या होगा, प्लांट की स्ट्रेंथ उतनी ही ज्यादा होगी. सो अपहोल्ड द प्लांट. These are the functions of roots. Now there are two types of roots. One is taproot, another is fibrous root. If we talk about taproot, in the taproot there is a main root, and from these other roots, other helping roots grows. These helping roots are known as lateral roots. इनको lateral roots बोलते हैं. This is main root. So एक main root होती है, उससे branches के फॉर्म में बहुत सारे roots grow करती है. This kind of root is known as taproot. अगर हम fibrous root की बात करें, बहुत सारी roots एक ही point से, they grow from one point. एक ही point से बहुत सारी roots grow करती हैं in a fiber-like structure. These are known as fibrous roots. So there are two types of roots. One is taproot and another is fibrous roots. Now we will discuss about modification. Modification, the changes which occurs during adaptation. So जैसे adaptation करेंगे, plants adapt करेंगे according to the usefulness, according to the conditions, they modify their parts. अपने conditions के according, अपने nature के according, they modify themselves, they modify their parts. उन changes को हम, the changes occurs due to their conditions, due to their environment, those changes are known as modifications. उनको हम modifications बोलते हैं. So modifications of roots are, we have seen the carrot, हमने carrot देखी है, हमने radish देखी है, हमने turnip देखी है. These are the modifications, modified roots, because ये roots हैं but they are modified to store food. Modifications. First is to store food. Food को store करने के लिए they are modified. Firstly, carrot, radish, their roots को हम food को store करने के लिए तो use नहीं करते हैं, but because they are modified, so इनका जितना ये जो ऊपर वाला part होता है that is shoot system, but the carrot is a root. Carrot is a root and stores food. It stores food. ये बहुत ज़्यादा nutritious है क्योंकि इसमें सारे का सारा nutritional part stored है plant का. That's why we eat this. That's why we eat radish. That's why we eat carrot. So roots are modified to store food. अपना खाना store करने के लिए roots modify होती हैं. Next, to provide support. Support provide कराने के लिए. Support provide कराने का काम stem का होता है, but sometimes the roots also provide supports. Like this is a tree, banyan tree. If we talk about banyan tree, it has roots. Like इसका जो ये जो जितना भी part है, ये जो downward grow करता है from the stem, from the branches, जो भी ये grow करता है, this is known as prop roots. इनको हम prop roots बोलते हैं, which are outside the surface of the land, जो कि land surface से outside है, but they are similar like roots, क्योंकि roots के बिल्कुल similar हैं. That's why we are saying prop roots. इसलिए हम इनको prop root बोल रहे हैं. They provide support. ये यहाँ से जाती हैं और grow कर जाती हैं into the soil. ये soil में grow कर जाती हैं, soil के अंदर चली जाती हैं, अपने आप को वहाँ पर stored up कर देती हैं और ये support provide कराती हैं. किसको? ये roots होती हैं but they work as the stem की तरह. जैसे stem support करता है plant को to withstand, खड़ा रहने के लिए. In the same way, prop roots also helps to provide support. So these are the modifications of roots. Now we will discuss about stem. We are going for shoot system and the first is stem. Stem, the part which is
अपर द लैंड सरफेस, जो लैंड सरफेस से ऊपर वाला पार्ट होता है दैट इज आर स्टेम, वो स्टेम होता है। फंक्शंस क्या क्या होते हैं स्टेम के? स्टेम प्रोवाइड्स सपोर्ट, सपोर्ट प्रोवाइड कराता है स्टेम, इट प्रोवाइड सपोर्ट। It transports water and food. Stem transports water and food also. Stem is to provide support. Support provide कराता है because herb और shrubs का जो stem है वो बहुत ज़्यादा वीक होता है, that's why they cannot withstand, इसलिए वो सीधे खड़े नहीं होते हैं। बट जो ट्री का स्टेम होता है क्योंकि उनका स्टेम बहुत हार्ड होता है, दैट इज इनफ स्ट्रॉन्ग टू विथस्टैंड द प्लांट, क्योंकि वो उसमें इतनी ताकत होती है कि वो पूरे के प्लांट को विथस्टैंड कर सके। तो इट प्रोवाइड सपोर्ट, इट हेल्प्स इन ट्रांसपोर्टेशन। जो भी वाटर रूट्स ने अब्जॉर्ब किया है, जो वाटर रूट ने अब्जॉर्ब किया है उसको ट्रांसफर कराने का काम, क्योंकि हमने पढ़ा कि जाइलम और फ्लोएम ट्यूब्स होती हैं स्टेम में, और इन्हीं के थ्रू जो वाटर है या फूड है, फूड फ्रॉम द लीव्स एंड वाटर फ्रॉम द रूट्स ट्रांसफर होता है। सो दिस इज द ट्रांसपोर्टेशन, ये ट्रांसपोर्टेशन है मटेरियल्स का। सो इट हेल्प्स इन द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ मटेरियल, इट हेल्प्स टू प्रोवाइड सपोर्ट. So these are the functions of stem. Now we will discuss about modification. Modification of stem. Modification of stem are, it also can store food. Stem can also store food like sugar beet, like potato. Potato is a stem and it stores food. So it is also modified to store food. It is modified to provide support in the form of tendrils. जैसे कि स्टेम होता है और वो अपने आप को टेंड्रिल्स के फॉर्म में, we have seen creeper, we have seen climber. जैसे क्लाइंबर्स होते हैं, क्लाइंबर का ये स्टेम होता है लेकिन इसमें से बहुत सारी टेंड्रिल्स निकली होती है। These tendrils can attach to anything like wall, like wood, rod, like anything, like a stick, किसी स्टिक से, किसी लेंथ सरफेस से, किसी भी चीज से स्टक कर लेगी और इसको सपोर्ट प्रोवाइड करेगी, क्लाइंब करने में हेल्प करेगी। सो इट हेल्प्स इन द इट हेल्प्स टू प्रोवाइड सपोर्ट। इसकी टेंड्रिल्स होती हैं, ग्रो कर जाती हैं स्टेम से और इट हेल्प्स टू प्रोवाइड सपोर्ट। तो सपोर्ट प्रोवाइड कराने में दे आर मॉडिफाइड टू गो फॉर फोटोसिंथेसिस, फोटोसिंथेसिस भी कराती हैं। लाइक कैक्टस, हमने कैक्टस देखा, the green part we see in the cactus is not a leaf. जो कैक्टस की लीफ होती है वो स्पाइन्स होती हैं, the spines present on the cactus, ये लीफ होती है। this green part is stem, ये स्टेम है, इसमें बिकॉज क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है और क्योंकि जो ये मॉडिफाइड पार्ट है स्टेम का, दैट्स व्हाई वी आर सेइंग इट स्टेम, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल होता है, ये फोटोसिंथेसिस भी करता है। सो दिस इज द मॉडिफाइड फॉर्म ऑफ स्टेम, कि ये फोटोसिंथेसिस भी कर सकता है बिकॉज ग्रीन कलर इज प्रेजेंट, chlorophyll is present, that's why it go for photosynthesis. So these are the modifications to store food, to give support, to go for photosynthesis. These are stem. The next shoot system में जो next आता है that is leaf. Leaves. हर्ब्स का जो स्टेम होता है वो ग्रीन कलर का होता है, बट हर्ब और शब का, बट अगर हम ट्रीज की बात करें तो दैट इज ब्राउन इन कलर, ब्राउन कलर का स्टेम होता है। Next we will discuss about trees, sorry, leaf. Next shoot system is leaf. अगर हम लीफ की बात करें, लीफ इज क्लोरोफिल, क्लोरोफिल होता है लीफ के पास। फर्स्टली वी विल डिस्कस अबाउट द स्ट्रक्चर। स्ट्रक्चर ऑफ लीफ इज, दिस इज petiole,
This is petiole. This is lamina. Lamina or leaf blade. We can say leaf blade. These are veins. This is the main vein. This is the petiole which attaches the whole leaf with the branches, जो कि इसको अटैचमेंट में हेल्प करेगी, जो कि इसको अटैच करेगी विद द प्लांट या ट्री ब्रांचेस से, जो कि इसको ब्रांचेस से अटैच करेगी, दैट इज petiole. ये पूरा का पूरा जो सरफेस होता है लीफ का, द सॉफ्ट पार्ट, that is lamina or leaf blade. This is the main midrib. We can say it midrib or we can say it main vein. So this is main vein or midrib and this is vein system. पूरे का पूरा vein system. ये vein system हमने दो तरीके का देखा है. One is this in which all the veins are parallel to one another. एक vein दूसरे के parallel होती है बिल्कुल. This is parallel venation. This is parallel venation. And in some leaves the structure is like this. एक मेन वेन होती है, उससे बहुत सारी वेन्स ग्रो करती हैं, बहुत सारी वेन्स निकलती हैं. दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन. दिस इज रेटिकुलेट वेनेशन. सो कुछ प्लांट्स में पैरेलल वेनेशन होती है, बट इन सम प्लांट्स देयर इज रेटिकुलेट वेनेशन. वेनेशन अरेंजमेंट ऑफ वेन्स इन अ लीफ. कैसे कैसे ये वेन्स एक दूसरे से अरेंज रहती हैं, कैसे हैं, पैरेलल हैं एक दूसरे के, ब्रांच पूरा नेटवर्क फॉर्म कर रही हैं. सो दिस इज अरेंजमेंट ऑफ वेनेशन इज अरेंजमेंट ऑफ वेन्स ऑन अ लीफ. एक लीफ पर कैसे अरेंजमेंट है वेन्स का, दैट इज वेनेशन. और कितने तरह का होता है, टू टाइप्स. वन इज पैरेलल, अनदर इज रेटिकुलेट. अगर सारी की सारी वेन्स एक दूसरे के पैरेलल हैं, दैट इज पैरेलल वेनेशन. अगर सारी की सारी वेन्स एक वेन में से बहुत सारी वेन्स निकल रही हैं, दैट इज रेटिकुलेट वेनेशन. अगर हम बात करें, रेटिकुलेट वेनेशन इज फाउंड इन फाइब्रस रूट्स. फाइब्रस रूट्स में रेटिकुलेट वेनेशन मिलता है एंड इन द पैरेलल रूट्स टैप रूट में. तो अगर हमें किसी भी प्लांट का ऐसे पता करना है कि वो उसमें किस टाइप के रूट्स हैं, there are fibrous roots or tap roots, we can see the venation of the leaf and we can find that the plant is having tap root or fibrous root. हम उससे बता सकते हैं कि कौन सा रूट सिस्टम है प्लांट में, टैप रूट सिस्टम और फाइब्रस रूट सिस्टम. अगर हम बात करें, the green color on the leaf is known as chlorophyll, जिसकी हेल्प से प्लांट क्या करता है, फोटोसिंथेसिस करता है. विद द हेल्प ऑफ क्लोरोफिल इट गो फॉर द फोटोसिंथेसिस. सो अगर फंक्शन की बात करें तो लीफ इज द किचन ऑफ द सेल, किचन ऑफ द प्लांट, बिकॉज इट प्रोड्यूसेस फूड, इट मेक्स देयर ओन फूड. क्योंकि क्लोरोफिल की हेल्प से वाटर को, कार्बन डाइऑक्साइड, CO2 फ्रॉम एयर, H2O फ्रॉम सॉइल, and in the presence of sunlight and chlorophyll, plant go for the process to make food and process is known as photosynthesis. तो प्लांट क्योंकि सारे का सारे खाना सिर्फ और सिर्फ लीफ में बनता है, दैट्स व्हाई दिस इज नोन एज किचन ऑफ द सेल. क्योंकि ये खाना बनाने में हेल्प करती है. सेकंड, ट्रांसपिरेशन में हेल्प करती है, वाटर लेवल को रेगुलेट करती हैं. जैसे कि अगर बहुत एक्स्ट्रा वाटर हो गया पूरे प्लांट में, सो ये क्या करेगी, वाटर वेपर की फॉर्म में स्टोमेटा होते हैं प्लांट्स पर, जिससे कि वो ब्रीद इन करता है, ब्रीद आउट करता है. प्लांट अपना ऑक्सीजन लेता है, कार्बन डाइऑक्साइड को बाहर निकालता है. और फॉर द प्रोसेस ऑफ फोटोसिंथेसिस CO2 भी यहीं से एंटर होती है और ऑक्सीजन भी यहीं से एंटर होती है. सो समटाइम्स अगर प्लांट में वाटर बहुत ज़्यादा हो जाता है तो इन द फॉर्म ऑफ वाटर वेपर्स, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी होती है तो वाटर, क्योंकि बहुत ज़्यादा टेम्परेचर होता है, सनलाइट के प्रेजेंस में वो क्या करेगा, अपना जितना भी वाटर होगा उसको वाटर वेपर की फॉर्म में इवेपोरेट कर देगा. सो दिस evaporation of water from the surface of leaf in the form of water vapors, this is known as transpiration. इससे वो पूरा का पूरा रेगुलेशन करता है वाटर का. जैसे ही यहाँ से अगर ट्रांसपिरेशन नहीं हुआ तो वाटर नहीं मिलेगा प्लांट को. जैसे ही यहाँ से वाटर ट्रांसपिरेट हुआ
एक प्रेशर क्रिएट किया लीफ ने रूट्स पर कि मुझे वाटर चाहिए, आई नीड वाटर। जैसे ही यहाँ से वाटर इवोपोरेट होगा ऐसे ही रूट्स सॉइल में से वाटर को एब्जॉर्ब करेंगी और फिर ट्रांसपोर्ट करेंगे टू द लीव्स। जैसे ही यहाँ से गए यहाँ से आया, देन यहाँ से जाएगा, देन यहाँ से आएगा। सो दिस होल इज नॉन एज ट्रांसपोर्टेशन। इस पूरे को हम ट्रांसपोर्टेशन बोलते हैं। सो ट्रांसपिरेशन में किचन ऑफ द सेल है क्योंकि फूड प्रोडक्शन करती है। सो दीज आर द फंक्शंस ऑफ लीफ। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ। मॉडिफिकेशन क्या क्या होती है लीफ की? इन द मॉडिफिकेशन ऑफ लीफ फर्स्ट इज टू प्रोवाइड सपोर्ट। बहुत बार हम सेम एज जैसे कि बहुत बार स्टेम सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए टेंड्रिल्स की फॉर्म में होता है। इन द सेम वे जैसे कि अगर हम बात करें बिटल गार्ड की या फिर किसी और प्लांट की, क्लाइंबर की अगर हम बात करें तो उसमें बहुत बार टेंड्रिल्स ग्रो करती हैं। टेंड्रिल्स ग्रो करने की वजह से क्या होगा? सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे। तो बहुत बार जो लीफ की स्ट्रक्चर है इट बिकम्स लाइक दिस। तो ये टेंड्रिल, दिस टेंड्रिल विल गो फॉर ग्लोरेसा प्लांट में। So this tendril will go for to provide the support to the plant. ये लीफ इस तरह से मॉडिफाई हुई है कि इसका जो स्टेम है इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग इनफ नहीं है कि वो इसको सपोर्ट प्रोवाइड करा सके। सो दैट्स वाई जो लीफ है वो सपोर्ट प्रोवाइड कराने के लिए टेंड्रिल्स की फॉर्म में चली जाती है। समटाइम्स लीव्स मॉडिफाइड टू फॉर्म इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स। स्पाइन्स की फॉर्म में अगर हम कैक्टस की बात करें, कैक्टस में हमने पढ़ाई थी लीव्स आर इन द फॉर्म ऑफ स्पाइन्स, ताकि ट्रांसपिरेशन ना हो सके ज्यादा। क्योंकि अगर ये स्पाइन्स की फॉर्म में होंगी सरफेस एरिया बहुत कम होगा, ट्रांसपिरेशन बहुत कम हो पाएगा। इसलिए वाटर का जो जितना भी वेस्ट होगा वो नहीं हो पाएगा। ट्रांसपिरेशन इज अ काइंड ऑफ वेस्ट। तो ट्रांसपिरेशन नहीं हो पाएगा अगर जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स की फॉर्म में होंगी। तो क्लोरोफिल में वो स्पाइन्स की फॉर्म में, और ओवरग्रेजिंग भी, जैसे कि बहुत बार जो जितने भी एनिमल्स आएंगे उनको ग्रेज कर जाएंगे, तो ओवरग्रेजिंग से बचाने के लिए भी जो लीव्स हैं वो स्पाइन्स की फॉर्म में मॉडिफाई हो जाती है। नाउ वी विल डिस्कस अबाउट फ्लावर, द रिप्रोडक्टिव यूनिट। Reproductive unit of the plant is known as flower, and flower have many parts. Flower. Structure of flower is reproductive unit of the plant is known as flower. अगर हम बात करें, the stalk which connects the leaves to the branches is known as petiole, and the branch which connects the flower with the branch or with the plant is pedicle. इसके ऊपर वाला जो पार्ट है उसको बोलते हैं थैलेमस। where all the petals connect, जहां पर सारी की सारी पेटल्स कनेक्ट करेंगी वहां उस पार्ट को थैलेमस बोलेंगे। these are the leaves of the flower. Leaves because they are colorful, that's why they are known as petals. These are petals. बहुत बार जब फ्लावर बर्ड कंडीशन में था तो उसको प्रोटेक्ट करने के लिए जो सेपल्स थी वो बंद थी। इट मीन्स लीव्स, जो फ्लावर की लीव्स थी वो बंद थी और उसको प्रोटेक्ट करने के लिए एक आउटर लेयर थी, दैट लेयर इज नॉन एज सेपल्स। क्योंकि अब फ्लावर मैच्योर हो चुका है, दैट्स व्हाई दे आर ओपन, क्योंकि वो ओपन हो चुकी हैं। तो ग्रीन कलर ऑफ लीव्स इन द फ्लावर इज नॉन एज सेपल्स, इनको सेपल्स बोलेंगे। इन द मिडिल देयर इज मिडल, बिल्कुल फ्लावर के मिडल में होती है पेस्टल और वी कैन से कार्पेल। पेस्टल और कार्पेल इज द फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, और इसके चारों तरफ होते हैं मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन दैट इज स्टेमन। स्टेमन इज द मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। तो अगर मेल गैमेट्स प्रोड्यूस होंगे वो स्टेमन के अंदर होंगे, और अगर हम बात करें फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन की, दे आर प्रोड्यूस्ड इन द
पिस्टल और कार्पेल, वो पिस्टल और कार्पेल में प्रोड्यूस होंगे। अगर हम बात करें पिस्टल कैसे होते हैं, दिस इज these lobes, ये जो lobe वाली स्ट्रक्चर, this is known as anther and this is filament. Filament is just to connect the lobes with the flower. filament इसके लिए होता है जितने भी जो मेल गैमेट्स होते हैं, मेल गैमेट्स जो कि स्टेमन में प्रोड्यूस होंगे, उनको हम बोलते हैं pollen grains. Pollen grains are the male gametes in a plant. So definition of pollen grain is pollen grains are the male gamete which are produced in the stamen. So pollen grains are the male gametes. वो एंथर में प्रोड्यूस होते हैं, एंथर से वो स्टिग्मा पर गिरते हैं, स्टिग्मा. दिस इज द स्ट्रक्चर ऑफ फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन. दिस इज स्टिग्मा. स्टिग्मा पर पॉलन ग्रेन्स आकर गिरेंगे, यहाँ से जैसे ही गिरेंगे ट्यूब बनेगी. दिस वन इज स्टाइल. ये जब ट्यूब ग्रो कर रही है बिकॉज वो पोलन ग्रेन से ग्रो कर रही है, दैट्स व्हाई दिस ट्यूब इज नॉन एज पोलन ट्यूब. ये जो लेंथ वाला पार्ट है, लेंथनाइज लॉन्गिट्यूडिनल पार्ट है, ये जो लंबा सा पार्ट है, दिस इज स्टाइल. और जो लास्ट में सर्कुलर पार्ट बचा है वो होता है ओवरी. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स. ओव्यूल्स में होते हैं फीमेल रिप्रोडक्टिव फीमेल गैमेट्स और वी कैन से एग. ओवरी के अंदर प्रेजेंट होते हैं ओव्यूल्स, ओव्यूल्स में प्रेजेंट होते हैं एग. व्हेन मेल गैमेट प्लस फीमेल गैमेट फ्यूज टुगेदर देन दे फॉर्म zygote. जब fruit and the fusion of male gamete and female gamete is known as fertilization. हमने बात की कि जो pollen grains है वो they are produced in the stamen, वो stamen में produce होते हैं, बट उनकी नीड कहाँ पर होती है? into the ovule. ovule में जरूरत होता है क्योंकि fertilization ovule में ही होता है. ये जो फ्यूजन है मेल गैमेट का प्लस फीमेल गैमेट का, इट मीन्स जब दोनों मिलते हैं, द एडिंग अप ऑफ मेल एंड गैमेट एंड फीमेल गैमेट इज नॉन एज फर्टिलाइजेशन. ये फर्टिलाइजेशन ओव्यूल में होती है और क्योंकि ये प्रोड्यूस होते हैं स्टेमन में बट इनकी नीड होती है ओव्यूल में, दैट्स व्हाई ये ट्रांसफर हो जाते हैं फ्रॉम द एंथर टू द स्टिग्मा. स्टिग्मा पर चले जाते हैं. सो दिस ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन्स इज नॉन एज पॉलिनेशन. Transfer of pollen grains from the anther of the from the anther of a flower to the stigma of a flower is known as so this transfer of pollen grains from the anther of the flower to the stigma of the flower is known as pollination. इसको pollination बोलते हैं. ये किसी भी तरीके से हो सकता है, या तो डायरेक्टली वो एंथर से स्टिग्मा पर गिर जाए, या फिर जैसे ही कोई इंसेक्ट वगैरह आया वो इंसेक्ट बैठा उस पर स्टिकअप कर जाएंगे, उस पर चिपक जाएंगे, और जैसे ही वो किसी और फ्लावर पर जाएगा या इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर जाएगा तो वहां पर भी गिर जाएंगे. सो पॉलिनेशन कहीं से कहीं भी हो सकता है. इसी फ्लावर से एक ही फ्लावर में भी हो सकता है. इसी फ्लावर के पॉलन ग्रेन इसी पर गिर गए तो भी हो सकता है. इस फ्लावर के पॉलन ग्रेन किसी और इसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पर चले गए, वो भी पॉलिनेशन हो सकता है. या फिर इस फ्लावर के दूसरे प्लांट पर चले गए, वो भी पॉलिनेशन हो सकता है. तो पॉलिनेशन कैसे भी हो सकता है? वाटर में गिर के भी हो सकता है, एयर के थ्रू भी हो सकता है, ह्यूमन बींग्स के थ्रू भी हो सकता है. सो पॉलिनेशन कैसे भी हो सकता है.